वेलकम अगेन। सो इस लेक्चर में जो है हम लोग समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 को। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो लेट अस टॉक अबाउट दीज टू फर्स्ट. So we are starting with the male reproductive system. So it is the male reproductive system. अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है दैट व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. So primary sex organ are those which produce gametes and male sex hormones. So in case of males which produce gametes, which produces gametes, and we already talked about gametes in the first chapter of our, that is they are haploid reproductive cells. So which produce gametes and male sex hormone. Right, so male sex hormone are called as androgen. One such androgen we have is a testosterone. So this is something we should be aware of, right? Okay, so what are male sex in primary sex organ males? So testes. We have a pair of testes. So testes are present in pair. We'll talk about the structure. What about the secondary sex organ? So what are the secondary sex organ? So देखिए those organ which help in either storage and transportation of these gametes. जो इन gametes के transportation या storage में मदद करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Secondary sex organ. So which helps in storage and transportation. And transportation of gametes. So they are called as secondary sex organ. इन्हें जो है हम लोग secondary sex organ बोलते हैं. ये वाली बात ध्यान रखनी है. So we have a list of secondary sex organ. We'll talk about each and everything. So such as we have epididymis, we have vas deferens, we have ejaculatory duct, we have urinogenital duct. अब ये सारी चीज क्या है? वी कैन इजिली अंडरस्टैंड. जब हम जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हम इन सारी चीज को वहां पर लेबल करेंगे तो इजिली हो जाएगा हमें समझना. द कॉपुलेटरी ऑर्गन in case of male is called penis. So penis is the copulatory organ. Of course, for each and everything we'll take the details separately, right? Okay, what are the glands which are present in case of males? And they are accessory glands. So what are accessory glands? Again, we are just writing the names. We'll talk each and everything about in detail in upcoming lectures. So accessory glands include in males. So in males, the accessory glands we have three. One is seminal vesicle. It is a saccular gland. They are present again in pair. So seminal vesicle, I'm writing that they are present in pairs. So two. Then we have bulbourethral. This bulbourethral is also called as Cowper's gland. They are actually small P-shaped glands, so they are called as Cowper's gland. Again, they are two in number. So Cowper's gland. We have a one large gland also. This is called as prostate. It is present between bladder and penis. So we'll relate the locations during the diagram as well. So that is prostate. It is one in number. It is a large gland. There are some of the pathological conditions which are also associated with this prostate. So we'll talk about it. So ये जो है ना glands हैं, ये accessory glands हैं.
हम जो है डिस्कशन शुरू करेंगे टेस्टिस से। तो सबसे पहले जो है हम लोग टेस्टिस को समझेंगे, इसकी लोकेशन समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। After that, we'll take the reproductive structures, all the other reproductive structures in detail. So let us start with the testis. Testis, T-E-S-T-E-S is a plural. T-S-T-I-S is singular. What we also call it as एक testis को testicle भी बोल देते हैं. So देखिए जब हम testis की बात करते हैं तो as I told you that testis are primary sex organ in male. They are primary sex organ in male. If I talk about their diameter, their measurement, so let me talk about this. So they are 4 to 5 centimeter long testis, and they are 2 to 3 centimeter wide. So width is around 2 to 3 centimeter. They are a small oval structure. So that is the diameter, that is a measurement. And there are the small oval structures. A small oval structure. Okay. Now two of the things which is very important in regarding testis. The first is the origin of the testis, that is where do they originate, and the second is location. So origin, if I talk about, that means development kahan hui hai testis ki. So first we'll talk about the origin. So अगर हम origin की बात करें तो testis intra-abdominally originate होते हैं, मतलब embryonic life में abdomen में ही बनते हैं. तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, they are intra-abdominal in origin. Intra-abdominal in origin. मैंने कहा कि ये बन कहां रहे हैं, डेवलपमेंट इनकी कहां हो रही है, तो डेवलपमेंट जो है इनकी अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में एब्डोमेन में ही होते हैं, राइट. लोकेशन कहां है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ऐसा हो रहा है कि ये एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम में आ जाते हैं. सो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. So they are located in a pouch-like structure, what we call as scrotum. So in a pouch-like structure, that is called as a scrotum. Right. So this is the location of the testis. Now we have to talk about the two questions. First of all, that why do they are extra abdominal? Or before I'll come to that they are extra abdominal, let me tell you, testis descend down. अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंट्रा एब्डोमिनल है, मतलब एब्डोमेन में है. तो 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड क्या है, हमने पहले बात कर ली है लास्ट लेक्चर में. पूरे प्रेगनेंसी के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, राइट. सो इन दी सेवंथ मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, टेस्टिस डिसेंड डाउन. टेस्टिस, आई थिंक मैं हाइड कर रहा हूं इस कंटेंट को यहां पर, सो यहां लिख देते हैं, टेस्टिस डिसेंड डाउन into scrotal sac. तो जेस्टेशन पीरियड के 7th मंथ में टेस्टिस जो है वो नीचे आते हैं, मतलब स्क्रोटम में आते हैं, ठीक है ना, एब्डोमेन से बाहर. ठीक, ये वाली बात ध्यान रखनी है. अगर बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में उड़ जाते हैं, नहीं हुए तो क्या होगा, एंसो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. लास्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम बात करेंगे. बट द डिसऑर्डर विच यू शुड नो इज दैट वन ऑफ द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म. सो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे हमेशा. फेलियर ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड फेलियर ऑफ descent of testis is actually called as cryptorchidism. So this is important, right? So ये वाली बात ध्यान रखनी है. दो क्वेश्चंस हमें और एड्रेस करने हैं यहां पर. पहला तो हमने एड्रेस अभी किया, दैट कि अगर टेस्टिस फेल हो जाए डिसेंड होने तो क्या प्रॉब्लम होती, तो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म. सेकंड क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू एड्रेस is that कि testis extra abdominal है क्यों, what is the reason that why the testis are extra abdominal. So we'll also address that question.
So look it here, but okay, let me write it. Let me draw the structure, फिर हम जो है relate कर पाएंगे. So let me draw the structure of scrotum. So this is a scrotum, or rather this is a scrotal sac. You know, this is a scrotum or this is scrotal sac rather. Okay. अब स्क्रॉटम में ये जो कैविटी है, देयर इज अ कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रॉटल सैक, जहां टेस्टिस प्रेजेंट है. सो दिस इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल सैक. दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज अ स्क्रॉटम. इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर located extra abdominally, right, between the two thigh. So this complete is called as a scrotum, right? Okay. Testes कहां present है? तो this is somehow the testes are present. And even ये जो, चलिए अभी हम बात करेंगे आगे. So this is how the testes are present, right? They are the two small oval shaped structure we talked about. So जिस cavity में है, this is called as a scrotal sac. I'll repeat, the cavity is called as scrotal sac. It is filled with fluid called as, you know, the cavity is also called as coelom, vaginal coelom or scrotal sac, right? Okay. So this is testis. ये जो structure है, they are called as testis, और one is called as testicle. Okay, testicle और testis. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि इंट्रा एब्डोमिनल थे ओरिजिन में, ओरिजिन इनकी एब्डोमेन में हुई थी. तो ये स्क्रॉटम में किस तरीके से आए? तो स्क्रॉटम में ये जिस कॉर्ड के थ्रू आते हैं, जिस एक ना एक रस्सी, एक मोटी सी रस्सी टाइप का एक स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ये आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिड कॉर्ड. अब ये पेल्विक कैविटी से ही अटैच्ड है, अभी पेल्विक कैविटी में एब्डोमेन में ही अटैच्ड है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, जिसके थ्रू ये आ रहे हैं. टेस्टिस नियर द किडनी इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ फॉर्म होते हैं, तो दे आर लोकेटेड अर्लियर नियर द किडनी एंड देन फिर जो है स्क्रॉटम में आते हैं. सो दिस अ थिक कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिड कॉर्ड, यू नो, एंड द पाथवे व्हाट दे अडॉप्ट इज द इंग्वालिन कैनाल. सो जिस पाथवे से आ रहे हैं उसको हम लोग इंग्वानल कैनाल बोलते हैं. सो दिस इज स्पर्मेटिड कॉर्ड, दिस इज स्पर्मेटिड कॉर्ड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है. अब ये जो टेस्टिस हैं, ये किस तरीके से अटैच्ड है? तो स्क्रॉटल वॉल से जो ये अटैच्ड है, तो अगेन एक फाइब्रस बेंड के थ्रू अटैच्ड होते हैं इस तरीके से. दिस फाइब्रस बेंड इज कॉल्ड एज ग्यूबर्निकुलम. सो दिस fibrous band is called as gubernaculum. So what is gubernaculum? Gubernaculum is the fibrous band with the help of which testes are attached to the scrotal sac. तो ये वाली बात भी जो है वो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, that how the testes are coming down. अब दो चीजें हमें सबसे पहले हैं एड्रेस करनी है. सो आई एम श्योर कि ये चीज आपको समझ आई है. नाउ पहला क्वेश्चन, व्हाई टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? Why testes are extra abdominal? So we need to address this question first of all. अब देखिए, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो कोर बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट the temperature required for spermatogenesis is 2 to 3 degrees Celsius lower than the core body temperature. आपकी कोर बॉडी टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है, मतलब चाहिए किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नो, राइट? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए. अब दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, दो और इंपॉर्टेंट बातें हम यहां दो मसल्स की बात करेंगे. पहली है डार्टोस मसल,
अब देखिए ये स्क्रॉटम की मसल है, इट इज अ स्क्रॉटल मसल। एंड एक और मसल होती है क्रेमेस्टर मसल, एक है डार्टोस मसल, एक है क्रेमेस्टर मसल एंड क्रेमेस्टर मसल। ये जो दो मसल्स हैं, दे आर द मसल्स ऑफ स्क्रॉटम एंड दे हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। अब डार्टोस मसल्स और क्रेमेस्टर मसल्स जो हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। सो हेल्प इन both of these muscles helps in temperature maintenance, right? So I'm writing temperature maintenance। किस तरीके से? तो देखिए डार्टोस मसल्स क्या करती है, डार्टोस मसल्स, अब जैसे मान लीजिए कोल्ड है बाहर, है ना, बाहर अगर कोल्ड है तो डार्टोस मसल क्या करेगी, डार्टोस मसल टेस्टिस को और रादर स्क्रॉटम को पुल करती है टुवर्ड एब्डोमेन। सो अगर कोल्ड है, बाहर ज्यादा कोल्ड है, तो जो स्क्रॉटम है वो एब्डोमेन की तरफ हो जाएंगे, सो दे बिकम लिटिल टाइट, राइट? दिस इज व्हाट डू आई मीन। सो वो जो है थोड़ा एब्डोमेन की तरफ हो जाएंगे। इसका रीजन ये है ताकि वो एब्डोमेन से हीट रिसीव कर सके। अब अगर मान लीजिए बाहर बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है, समर डेज है, ज्यादा टेम्परेचर है, सो अब इन्हें एब्डोमेन से तो लग के रहना नहीं है। रीजन ये है अगेन वही हीट का इश्यू, रिसीव करेंगे अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट। सो क्रेमेस्टर मसल क्या करती है, इट पुल्स डाउन द स्क्रॉटम, यू नो, सो इट एलिवेट द स्क्रॉटम, इट एलिवेट द टेस्टिस। सो जब टेस्टिस एलिवेट हो जाते हैं तो वो जनरली समर में होते हैं ज्यादातर केस में, ऑफ कोर्स बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है, सो हमें कम टेम्परेचर की जरूरत है। तो ये दोनों मसल्स जो है वहां पर टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प करती हैं। आई होप इतनी बात आप लोग को यहां पर क्लियर है, राइट? सो दिस इज समथिंग which is external, about external structure about the testis. Now we will see the testis layers and the internal structure of the testis now. So let us now talk about it as well. So ये जो है अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, क्या रीजन है इसका, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। इन द नाउ next what we will talk about, we'll talk about the internal structure of the testis. So that would be the heading, that is internal structure of the testis. इंटरनली अगर हम टेस्टिस को लेबल करें, सो लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ सम शेप हियर। सो screen display setting, arrow, okay, no, fine. So let's talk about it. Let us draw the internal structure of the testis. So this is how we can draw. You know, okay, testis has some layers, testis के पास अपनी कुछ layers हैं। सो द इनर मोस्ट लेयर, बेसिकली इस पे 3 लेयर होती हैं इसके पास, जनरली हम लोग 2 लेयर्स पढ़ते हुए आए हैं, बट इट हैज 3 लेयर्स एनीवे। लेट मी नाउ ड्रॉ दैट लेयर। मैं थोड़े थोड़े पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। The innermost layer I have drawn, it is called tunica vasculosa. So this is tunica vasculosa. अब tunica vasculosa के बाहर एक और लेयर है, that is called tunica albuginea. So this is the tunica albuginea, right? So this is called tunica albuginea. It is a second. And the outermost is called as tunica vaginalis. Last but not least, the third layer of the testis this is called tunica vaginalis. Okay.
अब इंटरनली जो टेस्टिस है इसके कुछ कंपार्टमेंट हैं। इंटरनली इसमें 200 से 300 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, एवरेज जो है हम लोग 250 लेते हैं। सो इंटरनली ये टेस्टिस जो है कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल देते हैं, लाइक दैट। सो दिस इज हाउ द कंपार्टमेंट्स आर फॉर्म। And you may found this structure somewhat like kidney, but it is not the kidney. Okay, well, so these are called as testicular lobules. So इनको हम लोग जो है testicular lobules बोल देते हैं। These are called as testicular lobules या फिर कंपार्टमेंट। तो एक टेस्टिस में ना अंदर कंपार्टमेंट है, तो these are called as testicular lobule और testicular compartment। ठीक, ऐसे अराउंड 200 से 300 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, बट द एवरेज व्हाट वी टेक, और जो एनसीईआरटी में हमारी मेंशन है, दैट इज 250 कंपार्टमेंट। राइट, वो कितने कंपार्टमेंट मेंशन है, तो 250 कंपार्टमेंट जो है वो मेंशन है। व्हाट एल्स वी हैव नाउ, इन कंपार्टमेंट के अंदर हर एक कंपार्टमेंट में हाईली कॉइल्ड कुछ ट्यूब्स हैं, दैट व्हाट वी कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हर कंपार्टमेंट में एक से लेकर के 3 हो सकती है, मतलब मिनिमम एक होगी और ज्यादा मैक्सिमम जो है 3 हो सकती हैं। सो मिनिमम दे कैन बी 1 and maximum they can be 3. So they can be 1, 2 and 3. So let me make some of the here as well. So these are actually seminiferous tubules. We will see the internal structure, और rather अभी जब हम जो है ना सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन देखेंगे प्रॉपर्ली कि किस तरह की सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। रीजन ये है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यही हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। सो दिस इज समथिंग वी शुड नो, राइट। ये जो है ये क्या है, ये है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो लेट मी लेबल दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी हो सकती हैं, तो एक टेस्टिस में लगभग एक, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3। अब देखिए मैंने कहा मैक्सिमम लोब्यूल 300 हो सकते हैं, एवरेज 250 लेते हैं। मतलब अगर हम मैक्सिमम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ईच टेस्टिस हैज मैक्सिमम 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हिच कैन बी प्रेजेंट मैक्सिममली। ठीक है ना, चलिए। सो अब ये जो टेस्टिस है, सॉरी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगी। मेरे कहने का मतलब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं। कैसे बनते हैं, वी विल सी, राइट, ड्यूरिंग दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। हालांकि हम इसका सेक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी मैंने आपको बता दिया इसमें जो है गैमेट्स बनेंगे। वो गैमेट्स एक दूसरे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में आएंगे, एंड दिस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्यूबुले रेक्टाई, या फिर इसको हम रीटे टेस्टिस बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुले रेक्टाई, दिस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, you know. So this duct like structure, the green one what I have drawn, this is called as rete testis, और इसी का नाम है ट्यूबुले रेक्टाई। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। नाउ ये जो रीटे टेस्टिस है, अब ये एक और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। सो वी हैव अनदर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर इन विच इट ओपन्स। सो देयर आर 12 to 15 डक्ट्स, इस तरीके से जो है ना ये ओपन होती हैं। यहाँ पर ये टेस्टिस के अंदर ही है सब कुछ। सो दीज डक्ट्स आर कॉल्ड एज वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। So what is vasa efferentia? Vasa efferentia is nothing but a duct system which is present inside the testis. तो टेस्टिस के इनसाइड प्रेजेंट है वासा एफरेंशिया भी, रीटे टेस्टिस भी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, क्वेश्चन ये ऐसे इस तरीके से फ्रेम होता है, द एग्जामिनर वुड आस्क अस दैट व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, या फिर इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या है। सो इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या है। जब हम लोग इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो देखिए इंट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया,
सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये कहाँ ओपन होंगी? ये ओपन होंगी आपका रीटे टेस्टिस में, और रीटे टेस्टिस आपका कहाँ ओपन होगा? ये होगा आपका वासा एफरेंशिया में, और वासा एफरेंशिया एक डक्ट में ओपन होगा जो हाईली कॉइल्ड डक्ट है 6 मीटर लॉन्ग, दैट इज एपिडिडाइमस, बट वो टेस्टिस के बाहर है, तो वो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर में हो जाएगा, राइट? तो दिस वासा एफरेंशिया देन ओपन्स इनटू एपिडिडाइमस। सो जो एपिडिडाइमस है दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। हम इंट्रा टेस्टिकुलर की बात कर रहे हैं व्हिच इज इनसाइड द टेस्टिस। सो वी हैव सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स that opens into rete testis. Rete testis opens into vasa efferentia, and the vasa efferentia then opens outside the testis into the epididymis. We'll talk about the epididymis in the later section. So this is about the internal structure. 3-layer, I'll repeat: tunica albuginea, rather from the outermost, then tunica vaginalis, the middle is albuginea, the innermost is vasculosa. Internally, testis is divided into some compartment, what we call as lobules or testicular compartment. So having 200 to 300 compartment, on an average we take the 250 compartment. In each and every testis there, or rather in every compartment there are structural and functional unit of the testis which are present, what we call as seminiferous tubules. These seminiferous tubules, within these seminiferous tubules, formation of spermatozoa or sperm takes place, and this opens into rete testis and rete testis into vasa efferentia. So let me write it about it here that they are actually structural and functional unit of the testis. So that is something which you must aware of, right? एक और चीज देख लेते हैं। अब देखिए इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अभी जो आपको गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये गैप ये क्या है? What is present inside this gap? अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू. So we call it as interstitial connective tissue. Right everyone? Right everyone? So this is something which is the internal structure of the testis. Right? तो आज हमने जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख लिया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस को देख लिया है. सो बेसिक चीजें वी हैव डन विद दैट. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल टॉक अबाउट, वी विल फर्स्ट सी द टीएस ऑफ द टेस्टिस. ये एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने देखा. अब हम जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कट सेक्शन को देखेंगे एंड विल सी कि किस तरह की सेल्स हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है, और क्या कुछ सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में भी प्रेजेंट है. सो यस, इसीलिए मैंने जो है स्पेशली से स्पेसिफाई किया है कि वी हैव इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट, बिकॉज यहां पर भी कुछ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं. One more thing I would like to tell you here that testes are heterocrine gland. I'm sure that you are aware that testes are heterocrine gland. अब देखिए क्यों है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसका रीजन भी मैं अभी आपको बताता हूं. जैसा कि मैं आपको अभी बता देता हूं कि इन टेस्टिस में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो गैमेट्स बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमेट्स बन रहे हैं, इस सरफेस पर आ रहे हैं या बॉडी से बाहर आ रहे हैं डक्ट सिस्टम की तरफ से. तो वी नो दैट एक ग्लैंड जब डक्ट जिसमें मौजूद होती है तो हम उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि इसमें इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू भी है. इस टिश्यू में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका नेचर एंडोक्राइन है, तो उन सेल्स को लीडिंग सेल्स बोलते हैं. कल वाली क्लास में देखेंगे हम, नेक्स्ट वाली क्लास में. एंड वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन. सो वो डायरेक्ट ब्लड में आता है, तो इसीलिए इसको हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है. राइट एवरीवन? सो होप यू एंजॉय द लेक्चर. लेट्स सी यू नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.